واپس آنے کا شکریہ ناظرین. Yet again with the infamous and the pioneers of everything I've already told you guys, theatre, I can go on and I'm not going to say that again. تو مجھے بتائیں آج کل اگین جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں میڈیا بوم کے حوالے سے, جب ہر انسان کے پاؤں 10 چیزوں میں ایک ٹائم کے اوپر ہے, what do you see this as? Diversity bringing out the best in you? I think this is the fault. اچھا You have pointed it yourself. You were asking us کہ خرابی کیا ہے. سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ there is so much work now and everybody is spreading themselves very thin. So کسی چیز کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر سکتے, اور بلکہ ٹائم دینا آپ سمجھتے ہیں is ایک ایسی چیز ہے جس سے میرا معیار گر گیا. اس کا مطلب ہے میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ میں اس بات کو اتنا ٹائم دے رہا ہوں. I mean, I should always be sorry جی ٹائم ہو گیا, میں نے جانا ہے, I have to shoot somewhere else. آپ مگر you know, to be very honest with you, ایک چیز میں نے آپ دونوں کے بارے میں اتنی appreciate کی ہے. When I contacted you, you were so down to earth and humble and so willing to come over and talk. And why I'm saying this is because آج کل میں کافی دفعہ نئی جنریشن کے ایک رویے اور ایک ایٹیٹیوڈ اور دیٹ چپ آن دا شولڈر جو دیکھتی ہوں, sometimes it kind of gets very discouraging. For us also, because we are asking most of the time, ہم بھی جب اسٹیج کا پلے اپ کر رہے ہوں یا ٹی وی کی پروڈکشن کر رہے ہوں, انہی لوگوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں. ان میں زیادہ تر ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں, کچھ ہماری طرح کے بھی ہوتے ہیں, مڈل ایجڈ اینڈ اولڈر پیپل. بٹ یہ ہے کہ وی آلسو گیٹ فیڈ اپ آف اٹ. ایک بندہ جو کہ ابھی کچھ کرتا بھی نہیں ہے, ابھی وہ ٹی وی یا کسی چیز کے اوپر آیا بھی نہیں ہے, اس کا بھی اتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ اقدار اور قائد جو ہم لوگوں کو رکھنے چاہیے کہ بھائی اپنے بڑوں سے سیکھو, ایکسپیرینس سے سیکھو, اس سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو ان کی آنکھ نے دیکھا آپ کی آنکھ نے ابھی تک نہیں دیکھا. بٹ یٹ وی ڈونٹ فائنڈ دیٹ. دیٹ بینگ سیڈ, ٹیل می سمتھنگ, کابل ایکسپریس آپ انٹرنیشنل بھی گئے, ہاؤ واز دیٹ؟ Oh, that was a fluke, but it worked out very well, like a lot of other things. This is what I call modesty. Not کہ بھائی یار وہ تو میرے پاس کافی دیر سے آ رہے تھے, میں نے سوچا کہ یار چلو. نہیں کافی دیر سے تو بیچارے کوئی بھی نہیں آ رہے تھے. They wanted to, وہ ایک ڈاکیومنٹری فلم میکر تھا who was insisting کہ جس نیشنلٹی کا جو کردار ہے میری فلم میں, میرے اسکرپٹ میں, اسی نیشنلٹی کے بندے کو میں کہوں. میری ایک جاننے والی وہاں تھیں, ینگ کپل, ینگ لائک یور سیلف, and she was in Bombay. She's a Pakistani Canadian. She was living there. تو ان کا کوئی ملنا جلنا تھا میاں بیوی کا ان لوگوں سے, فلمی دنیا کے لوگوں سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اس قسم کا ایک بندہ چاہیے. So they contacted me and اس ایکسپیرینس میں یہاں پر یہ کہوں گی, سلمان از بینگ ویری ماڈسٹ اباؤٹ اٹ, مگر انہوں نے اور لوگوں کو بھی کانٹیکٹ کیا تھا جو جن کا مجھے معلوم ہے, اور پھر فائنل انہوں نے سلیکٹ سلمان کو کیا تھا. اور آپ کا مجھے یہ بتائیے, یہ ایکسپیرینس اور یہ ایکسپوجر اس نے آپ کی ذہنیت میں تبدیلی لیا, یا آپ the way you perceive the world and کوئی کچھ نہیں؟ I perceive the world when I go to work. I try to pick things, but my perception does not change. If I go to work in India, or even if I go tomorrow to Hollywood to work, I am going to take my perception, which I have been carrying for so long. مگر اس میں گروتھ تو آتی ہے نا سلمان صاحب. گروتھ کی ایک اور بات ہے, بٹ ایک دم میں ایسے لے کے اور قسم کی چیز بن جاؤں. جیسے کہتے ہیں نا, in the face of more information and news, a person has a right to change their thinking or change their ideas or opinions. Yeah, but I know that I also carry with me something which I have built بنیادی طور here. پہ بالکل. And وہ بھی تو میں نے لے کے جانی ہے نا, because it's not, I surely I'm not blocking myself کہ بھی ان سے میں نے کچھ سیکھنا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا. بٹ مجھے یہ نہیں کہ میں سکھانا ہے, بٹ میں وہی میری جو پرسیپشن ہے, میرا جو زاویہ ہے, میرا جو انداز ہے چیزوں کو کرنے کا اور دیکھنے کا, وہ بھی تو ایک ہر بندے کا انفرادی ہے, تو اس کو میں کیوں. تو مجھے یہ بتائیے, باقی انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے ڈیڈ یو فیل کہ ہماری ایکٹنگ کرائٹیریاز یا ہماری ایکٹنگ سٹائل اور اسٹینڈرڈز ذرا مختلف ہیں ان سے, اونچے ہیں, کم ہیں, ایسی کوئی آپ کا؟ نہیں, ایسے نہیں آدمی سوچتا اونچے کم, وہ نہ یہاں کام کرتے سوچتا ہے نہ وہاں کرتا ہے. The way I'm looking at it is, I'm very happy if I can justify کہ میں نے جو اس کام میں کیا بطور اس کے جو کہ لکھا گیا یا مجھ سے کہا گیا یا جو میں نے سوچا ہے اس پہ میں پورا پہنچا ہوں اپنی نظر میں. چاہے وہ مجھ سے بہتر کر رہا ہو یا بدتر کر رہا ہو, that's not the criterion, because somebody will surely be doing better than you and somebody will be doing worse than you. بالکل. So that's with everybody. So to hold your own. So Meena, I'm sure you know the beauty of the kind of work you do. The beauty is کہ آپ constantly, again جو میں بات کر رہی ہوں, you're enacting different roles, آپ مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں, interaction اتنا زیادہ ہے, different scenarios ہیں, situations ہیں.
सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ऐसा एक एक्सपीरियंस चाहे वो किसी भी हवाले से हो विच रियली काइंड ऑफ ओपनड योर आइज एंड बहुत आप डीपली मुतासिर हैं, यू होल्ड क्लोज टू योर हार्ट फॉर एवर, वो क्या होगा? कोई एक एक्सपीरियंस में, आई एम सॉरी मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है आपकी इतनी, मतलब आई बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिल्कुल, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं, मैं उसमें यकीन नहीं रखती हूँ कि कोई एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। आपके छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो बनती चली जाती है, और आप थ्रू आउट योर लाइफ आप हर एक से सीखते रहते हैं। मेरा ये है कि आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं कोई ना कोई चीज़ आपको एक नई नज़र आती है जो कि आप अपने अंदर समो लेते हैं, और कहीं ना कहीं आप यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, आपको बेहतर बना देती है वो बात। या आपको कहीं पर जब आपको अपनी रिसोर्स ढूंढनी होती है तो वो बैक ऑफ योर माइंड आपकी चीज़ वो रह जाती है और वो कहीं निकल के आती है। कोई ऐसे बड़ी मैं नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ आप जैसे अदाकारों से बात करके जो पर्सनली द थिंग आई लव द मोस्ट एंड आई फाइंड ऑलवेज इज के कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली there's so much advice जो आप लोग देते रहते हैं, because when I started it's only alhamdulillah been a year, मुझे कहा गया था कि the death of an artist or a performer or anybody is कि जो वो उस दिन जब आपने सोचा कि भैया मुझे सब कुछ आता है या मैंने अपना मार्क मेक कर लिया, that is the end of you. एनीथिंग रियली, फिर तो वो खत्म हो जाता है ना। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप अगर आप टीचर हैं या डॉक्टर हैं और आप समझें कि आपको सब कुछ आ गया है तो और आप परफेक्ट हो गए हैं, परफेक्ट तो आप कभी भी नहीं हो सकते, गॉड इज ओनली परफेक्ट, वी कैन नेवर अचीव दैट, है ना, तो हम वी कैन ओनली स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। सच गप का दौर कैसा था? बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था, बहुत मजा था। कोई ऐसा दौर था which was going to make you guys squirm and be like कहाँ दौर नहीं हम कह सकते, सच गप हमने किया 1 साल तकरीबन, या हाँ 1 साल किया ना, हाँ, तो वो साल बहुत मजे का था, मगर कहीं कहीं बीच में ऐसे मोमेंट जरूर आए जो आप कहते हैं कि ओफ, अच्छे ड्रामे मैंने बहुत ड्रामे किए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर ड्रामा बहुत अच्छा था, कहीं कहीं हमने बहुत रद्दी काम भी किया है, स्टेज के ऊपर भी रद्दी काम किया है और टेलीविज़न पर भी रद्दी काम किया है। मतलब स्क्रिप्ट अच्छा नहीं था, आपने कर लिया टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, डायरेक्टर ने जैसा कहा आपने उसको बना लिया, कई दफ़ा आपसे रोल बना भी नहीं, ये भी होता है कि आपसे क्वेश्चन के स्क्रिप्ट गलत था तो इसलिए आपसे नहीं हुआ, फिर तो बड़ा आसान हो गया ना, कि जिस किसी को भी आपने स्क्रिप्ट अच्छा दे दिया उसने अच्छा कर लिया, जिसको बुरा दिया बुरा कर लिया। मगर कई दफ़ा ये होता है कि कोई स्क्रिप्ट ऐसा होता है जो कि आपको शायद, मुझे याद है कि एक ड्रामा था जो कि मुझे समझ में नहीं आया उसका कि वो रोल क्या है, मुझे उसकी बारीकियां नहीं समझ में आई, और मुझे यूँ लगा जैसे मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उसको और ज़्यादा समझती। वो 1 दिन 2 दिन की रिहर्सल के बाद में मतलब रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर दी, और मुझे वो नहीं मतलब मेरे यहाँ पर पिक्चर बननी चाहिए उस इंसान की, मेरा ये कि जी ये इस तरह की जो डायरेक्टर मुझे कह रहा है उसकी मुझे कोई एक फिज़िकल फॉर्म उसका कुछ कि ये किस तरह की औरत है, क्या करती है, क्या सोचती है, किस तरह चलती है, किस तरह उठती है बैठती है, ये वो मेरे जहन में पिक्चर नहीं बनी, इस वजह से वो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और आपका यू हैव योर ओन प्रोडक्शन हाउस अपने बेटे ज़ैन के साथ, राइट? एंड ओके, अभी तक अपने इस प्रोडक्शन हाउस वर्किंग विद योर सन, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस बीन? It is difficult at times because if you're working, आपकी एक लाइन ड्रॉ आउट हो जाती है ना, अगर आप किसी और के साथ काम कर रहे होते हैं कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी है, मगर वो आप फैमिली साथ में आ जाती है, फिर अपना बेटा है, बेटा यू नो इज़ वेरी, मतलब योर ओन चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, आप उसको ना भी नहीं कहना चाहते, और फिर उसमें इट इज़ डिफ़िकल्ट, अ लिटिल डिफ़िकल्ट, मगर हमने भी उसका फिर ये पैटर्न हमने बनाया बिकॉज वो भी डायरेक्ट करता है, मैं भी डायरेक्ट करती हूँ, तो उसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो खुद अपने प्रोजेक्ट्स डिवाइस करता है और वो उनको खुद हैंडल करता है। आई जस्ट हाँ, इफ़ आई एम एक्टिंग फॉर हिम विच आई डू समटाइम्स, तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती कि वो कहते हैं आप कर, हाँ मैं वो करती हूँ, जिस तरह से वो चाहता है मैं वो करती हूँ, अगर वो मेरे लिए एक्ट कर रहा हो तो फिर वो जैसा मैं चाहती हूँ वो करता है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप लोगों ने ज़िया का दौर भी एक्सपीरियंस किया होगा जब कल्चरली और आर्टिस्टिकली फंदा लग चुका था, ऑलमोस्ट पीपल वर स्ट्रैंगुलेटेड ऑलमोस्ट, एंड स्पेशली आर्टिस्ट जब मैं उनसे बात करती हूँ कांप जाते हैं सोच के, पूरी कौम एक किस्म की स्ट्रैंगुलेटेड थी। एब्सोल्युटली, मगर अगर हम इस you were probably very young at that time and but you've suffered that as a very young person, as a child probably you've suffered that era, so everybody don't was remember anything though, believe me, मगर मैं इसलिए आपसे इस हवाले से पूछ रही हूँ बिकॉज तब का टाइम और आज का टाइम
आज सो टू से वो फ्रीडम तो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, चलने की, उठने बैठने की, सेल्फ एक्सप्रेशन की, हाँ, लेकिन एक और चीज़ है कि एट द सेम टाइम इट्स अ मिसफॉर्च्यून फॉर ऑल ऑफ अस एज दैट चाहे फ्रीडम हो या ना हो, द इनसिक्योरिटीज ऑफ आवर कंट्री हैव जस्ट मल्टीप्लाइड. वी आर अ वेरी इनसिक्योर, अ वेरी पैरानॉइड नेशन. तो एक आर्टिस्ट कैसे मुतासिर होता है इस चीज़ से? एक आर्टिस्ट इस तरह मुतासिर होता है कि सबसे पहले वो इस बात को बयान भी कर सकता है अगर, लेकिन आप देखें इधर ही फ़र्क पड़ता है कि आर्टिस्ट क्या कर रहा है और एक मैसेंजर या जो एक रिपोर्टर क्या कर रहा है. रिपोर्टर तो ये कर रहा है कि वो बयान कर रहा है, आर्टिस्ट जो है इट्स अ परसेप्शन. आई थिंक इस वक्त जो सबसे बड़ी बात हम जो बयान कर सकते हैं, और मैंने एक आई रोट अ प्ले इन फैक्ट विच आई एम टेकिंग टू, अभी दिल्ली में जा रहा हूँ जनवरी में, वहाँ फेस्टिवल होता है. आई एम टेकिंग अ कपल ऑफ प्लेज इंशाल्लाह, एंड वी परफॉर्म देम इन लंदन ऑल्सो ज़बरदस्त. एज अ रीडिंग. एंड बिकॉज वहाँ लंदन में हमें मुझे किसी ने कहा था वो रीडिंग्स करने को. मेरा एक उसमें एक प्ले मेरा है उसमें, एंड इट इज़ ऑल अबाउट जो हमारे यहाँ हो रहा है, और उसमें सारा जो है ना जोर जो है वो कैरेक्टर्स पे पैरानोया का है. दे पैरानॉइड. आई थिंक इट्स जो मुझे मसले लगते हैं विच पीपल कैन राइट एंड टॉक अबाउट एन एक्ट. Acting is also not just representation as far as I am concerned. Acting जो है it is always about a conflict and without a resolution. So what is it? वजाहत कीजिए प्लीज. कॉन्फ्लिक्ट तो ड्रामे में होता है जी. जब उसकी रेजोल्यूशन नहीं होती तो इंसान में एक बेबसी, बेचैनी होती है. आपकी ज़िंदगी के अंदर भी अगर कोई मसला है, यू आर मैरिड और यू आर नॉट मैरिड, आपकी शादी होने वाली, लेट्स से वो लड़का ख़राब है या वो मर्द ख़राब है, कुछ ऐसी बात है, एंड उसके अंदर आप एक कश्मकश में मुब्तला हैं. तो इसी तरह कोई तज़ाद होता है जिसके ऊपर हम ड्रामा बनाते हैं. तो ये जो कश्मकश होती है ना, ये कई बार पूरी कौमों के अंदर होती है एक वक्त. इस वक्त मेरा ख्याल है उस कश्मकश का नतीजा ये है कि हम खौफज़दा हैं एज अ कौम. बिल्कुल. हम हर चीज़ से डरते हैं, हम हर चीज़ समझते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी है. बेशक. हर चीज़ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि वो जी वो धमाके कौन कर रहा है, ये भी कर रहा है, क्या पता वो भी कर रहा है, को हमारे अंदर से भी बंदे कर रहे हैं, को उधर से बाहर से कर रहा है. सो ये सारा कुछ जो है, दिस इज़ आवर मेंटल ज़हनियत इस वक्त. इस चीज़ को बयान आपने करना है अगर आप आर्टिस्ट हैं. आपने ये नहीं बताना कि आज के दिन मीरन शाह के अंदर धमाका हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. वो तो एक वो प्रेस वाला भी कर रहा है. सो इट इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट इवन एन एक्टर रिप्रेजेंट्स. बेशक. You know, he's not just saying कि अच्छा मैंने आंखें फाड़ फाड़ के एक्टिंग करनी, चलो कर लो, नाक इस तरह करके कर लो, you know, कान खड़े करके. Absolutely, a kaleidoscope of experiences, of colors, और जिसे कहते हैं ना जिंदगी के सुनहरे असूल, वो हम सुन रहे हैं आज. मगर वक्त हुआ चला एक छोटी सी ब्रेक का. Stay tuned, we're going to be right back.